So today we will start from cream. ठीक है. So in general, if we talk, so we can say that the fatty layer that rises to the top of the milk when it stands undisturbed for some time. ठीक. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जब हम मिल्क का पैन है, जब बॉईल करने के बाद घर में उसको रख देते हैं, तो आपने देखा थोड़ी देर बाद उसमें एक लेयर ऊपर आ जाती है जिसको हम मलाई बोलते हैं. ठीक है. या हम फ्रिज में रखते हैं, जब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो थोड़ी एक एक थिक लेयर हो जाती है उसकी. देखा होगा ना आप लोगों ने घर में अपने. ठीक. Yes, ma'am. तो दैट इज नोन एज क्रीम. कि व्हेन it stands undisturbed, when the milk stands undisturbed for some time, so the fatty layer that rises to the top of the milk is known as the cream. ठीक. And if we talk about the definition, so we can say that portion of milk which is rich in milk fat, or we can say the portion of milk into which has been gathered and which contains a large portion of milk fat. ठीक है. तो कोई भी milk का वो portion which is rich in milk fat, that is known as the cream. ठीक है. And if we talk about the definition of cream as according to PFA, ठीक है, PFA रूल 1976, ये आप याद रखिएगा. ठीक है. और PFA रूल 1976 ईयर याद रखो. ठीक. तो क्रीम excluding sterilized cream is the product of cow or buffalo milk or a combination which contains not less than 25% milk fat. So this is the important point कि cream contains not less than 25% fat. तो इस पर भी क्वेश्चन इसी तरह से बन सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे कि the percentage of fat in milk, in cream. ठीक है. तो the minimum percentage. ठीक. तो that the answer will be 25%. ठीक है. Next point is the classification of cream, which is as according to percentage of milk fat. The classification is table cream, light cream, coffee cream, whipping cream, heavy cream and plastic cream. ठीक. तो table light and coffee contains 20 to 25% milk fat. Whipping and heavy cream contains 30 to 40% milk fat, and plastic cream contains 65 to 85% milk fat. ठीक. तो ये परसेंटेज आपको याद रखनी है कि किस तरह की क्रीम में कितना परसेंट मिल्क फैट प्रेजेंट है. ठीक है. इस टेबल को आप लोग याद करिएगा. आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट. ठीक है. इन द ग्रुप. तो ये आप लोग ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट इज if we talk about the composition, the chemical composition of cream, so different constituents: water, fat, protein, lactose, ash, total solids, solid not fat. Okay. So water percent 68.2, fat 25, protein 2.54, lactose 3.71, ash 0.56, total solids 31.8, solid not fat 6.8. ठीक है. ये तो एक तरह का है और constituents. But if percentage of water is 45, fat is 50, protein 1.69, lactose 2.47, ash 0.37, total solids 54.5 and solid not fat 45.5. ठीक है. This is as according to the Dictionary of Dairying by Davis 1965. ठीक है. तो इसमें बेसिकली आपको जो क्वेश्चन बनता है क्रीम के लिए, दैट वो फैट के अकॉर्डिंग ही बनता है. ठीक है. देन देयर इज अ फॉर्मूला through which
we calculate the percent solid not fat in cream. That is 100 minus percent fat in cream divided by 100 minus percent fat in milk and whole multiplied by percent solid not fat in milk. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद करिएगा. कुछ ये फॉर्मूला दिया है पॉइंट नंबर 6 में. 100 minus percent fat in cream upon 100 minus percent fat in milk into percent solid not fat in milk. ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा. इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, वो जस्ट परसेंटेज ऑफ फैट इन क्रीम दिया होगा, इन मिल्क दिया होगा, तो सॉलिड नॉट फैट दिया है, तो आपको परसेंट SNF निकालना है या जिस भी कॉम्बिनेशन है. तो ये फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिए. इफ यू टॉक अबाउट द nutritive value of cream, as we are saying that cream is a fat rich product. ठीक, तो if it is fat rich product, तो ये किस में आएगा? energy giving. ठीक है, it is energy giving food and it contains fat soluble vitamins like A, D, E and K. ठीक है, क्योंकि फैट परसेंटेज अच्छी परसेंटेज में है, तो it is rich in fat soluble vitamins. ठीक है, next topic is the physicochemical properties. तो viscosity, first one is viscosity. कोई मुझे बताएगा what do you understand by viscosity? Anyone? राहुल और सौम्या. मैम विस्कोसिटी उसकी थिकनेस से रिलेशन है इसका, डेंसिटी से रिलेशन है इसका, कि इसकी डेंसिटी इसका कुछ मतलब फॉर्मूले पे जाएंगे तो. हाँ बोलो सौम्या, बताओ. एबिलिटी टू फ्लो. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय लिक्विड टू फ्लो, है ना? फिजिक्स में पढ़ा होगा ना हमने. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय लिक्विड टू फ्लो, जितना दिस इज नोन एज द विस्कोसिटी, है ना. एंड इन द केस ऑफ क्रीम, कंज्यूमर जजेस द रिचनेस ऑफ क्रीम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स विस्कोसिटी. कहते हैं ना, अगर लेमैन की भाषा में कहें कि क्रीम के को अगर कोई लेमैन, कोई आम आदमी अगर उसको परचेस करेगा तो क्या कहेगा? अगर वो गाढ़ी है ना, तो वो अच्छी क्रीम है. ठीक, तो दैट मीन्स वो विस्कस है. ठीक है, तो रिचनेस डिपेंड्स अपॉन द viscosity if we talk about the consumer point of view. Okay, and viscosity depends upon various factors, or we can say it is affected by various factors like fat percentage, temperature, separation conditions, homogenization, cooling, aging, clumping. ये आप लोग ना बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और these properties are affected by which factors. ठीक है, तो if we talk about the fat percentage, higher the fat percentage, greater the viscosity. ठीक है, तो जितना ज्यादा फैट होगा क्रीम में, वो उतनी ही ज्यादा विस्कस होगी. टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर, लोअर द विस्कोसिटी. याद करना. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी. सेपरेशन कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे, तो हायर द टेम्परेचर ऑफ सेपरेशन, लोअर द विस्कोसिटी. याद रखिएगा. ठीक, लोअर टेम्परेचर ऑफ सेपरेशन रिजल्ट्स इन हायर फैट लॉस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एग्जाम में मिलेंगे. If we talk about the homogenization, single stage homogenization increases viscosity. Double stage homogenization reduces viscosity. याद रखिएगा. Slow cooling of cream increases viscosity.
एजिंग इंक्रीजेस विस्कोसिटी, ठीक है, एंड क्लम्पिंग, द ग्रेटर द डिग्री ऑफ क्लम्पिंग द ग्रेटर द विस्कोसिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को ये पढ़ने हैं, अच्छे से याद करने हैं। प्लीज फॉलो द बुक आउटलाइंस ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी बाय सुकुमार डे। सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इफ इट एज आई यूज द टर्म क्लम्पिंग, ठीक है, तो ग्रेटर द डिग्री ऑफ क्लम्पिंग ग्रेटर द विस्कोसिटी। अब क्लम्पिंग क्या होती है? Clumping is the tendency of fat globules to loosely adhere to one another to form clumps or clusters, ठीक है, लूजली एक दूसरे के साथ अटैच होंगे फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक, और वो क्लम्प्स बनाएंगे, दैट इज नोन एज द क्लम्पिंग। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। क्लम्पिंग depends upon fat globule size, temperature, agitation, method of separation and adhesives, ठीक है। तो large globules clump more readily than smaller ones, ठीक है, fat globule size की अगर हम बात करेंगे। Temperature, second point is temperature which affects the clumping. Maximum clumping takes place around 7 degrees centigrade. ये याद रखना कि क्लम्पिंग के लिए जो मैक्सिमम जो सबसे अच्छा टेम्परेचर है दैट इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में भी आप याद रखोगे 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लम्पिंग डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। क्लियर? Next is agitation. At a favorable temperature, around 7 degrees centigrade, clumping increases by agitation. ठीक है, तो 7 degree centigrade is a favorable temperature. And unfavorable temperature, which is around 60 degrees centigrade, clumping decreases and clumps are broken up. अगर क्लम्प्स बन चुके हैं तो वो भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्रोकन अप हो जाएंगे, ठीक। तो फेवरेबल टेम्परेचर फॉर क्लम्पिंग इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड अनफेवरेबल टेम्परेचर इज अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन क्रीम clumps to a greater degree than centrifugally separated cream of the same fat content. आगे हम पढ़ेंगे कि क्रीम सेपरेशन के दो मेथड्स होते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन और एक सेंट्रिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ग्रेविटी सेपरेशन के थ्रू जो क्रीम बनती है उसमें क्लम्प ज्यादा अच्छे बनते हैं इन कंपैरिजन टू सेंट्रीफ्यूगली सेपरेटेड। अगर सेम फैट कंटेंट है तब भी, इसको याद रखना, ठीक है। एंड एडेसिव्स फॉर एग्जांपल जिलेटिन हेल्प्स इन क्लम्पिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है। तो पहली फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी विस्कोसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज विपिंग क्वालिटी। अब विपिंग क्या है? बीटिंग ऑफ क्रीम टू प्रोड्यूस फ्रॉथ और फोम, ठीक है। तो क्या होगा व्हेन वी बीट द क्रीम, तो क्या होगा उसमें एयर इनकॉर्पोरेट होगी, ठीक है। विपिंग क्रीम इज अ स्पेशल फॉर्म प्रोसेसिंग रिमार्केबल स्टेबिलिटी एंड इज यूज्ड इन, कहाँ यूज होती है? केक्स में, आइसक्रीम्स में, फॉर डेकोरेशन, ठीक। ये तो आप लोगों को पता होगा। विपिंग क्वालिटी बताइए, विप करते हैं घर में भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जाम्पल बताओ, हम Cakes में भी घर में क्या चीज हम बनाते हैं विप करके? मक्खन। हाँ, और
और और क्या मैम वो केक के ऊपर जो फ्रोस्टिंग लगती है वो भी बनाते हैं। और बताओ एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल जिसमें whip करते हैं हम। लस्सी बनाते हैं वैसी। कॉफी बनाते हैं, कॉफी बनाते कॉफी को करते हैं whip, है ना। यस लस्सी भी मैम। कौन सी बनाते हैं कॉफी, डेलागोना कॉफी बनाते हैं जो, ना। हाँ हाँ हाँ। है ना। तो क्या करते हैं उसमें हम उसको बीट करते हैं। बीट करने से बीट क्या करते हैं फिर। है ना, बीट करने से क्या होता है, जो फेंटना बोलते हैं जिसको, बीट करने से क्या कर होता है कि उसमें एयर एयर इनकॉर्पोरेट हो एयर जाता है ना। और एयर इनकॉर्पोरेट होने से क्या होता है कि एक फोम बन जाता है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है उसका, ठीक है। तो फोम बनना, ठीक, तो दैट इज नोन एज द विपिंग, ठीक। तो विपिंग भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक फैट परसेंटेज। मोस्ट सेटिस्फैक्टरी फैट परसेंटेज इज 30 to 35%, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, लोअर्स above 4 degree centigrade. If whipping lowers above 4 degree centigrade, separation temperature is 32 degree centigrade, ठीक है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड मोर सेटिस्फैक्टरी देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जितने पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ करके याद करिएगा। एजिंग फॉर 24 आवर्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम। तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी याद करेंगे और फ़ारेनहाइट में भी याद करेंगे। होमोजेनाइजेशन above 300 psi. Acidity reduces whipping quality. Addition of stabilizers reduces, and specific gravity depends upon the fat percentage, different fat percentage, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं, याद करने हैं। एक बार मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ बस, ठीक है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में अभी हमने क्या क्या देखा, विस्कोसिटी, विपिंग क्वालिटी, नेक्स्ट इज specific gravity, third one is specific gravity which depends upon the fat percentage, and next one is the acidity. Acidity, मैम हाँ बोलो। स्क्रीन ना फ्रीज्ड है मैम, आप बुक से पढ़ा रहे हो क्या अभी? बुक से भी दे, हाँ बुक से बता रही हूँ मैं, अच्छा। क्योंकि इसके बाद ओ, ना नेक्स्ट चैप्टर है, क्योंकि मैंने इसको ना बहुत छोटे उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं इनको लिया हुआ है फिर, ओके मैम, ओके। ठीक। तो नेक्स्ट इज एसिडिटी। परसेंट टाइट्रेटेबल एसिडिटी ऑफ क्रीम, इसका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी यहाँ इसमें दिया है, ये देखो पॉइंट नंबर 7, ठीक है। 100 माइनस परसेंट फैट इन क्रीम अपॉन 100 माइनस परसेंट फैट इन मिल्क मल्टीप्लाइड बाय परसेंट टाइट्रेटेबल एसिडिटी ऑफ मिल्क। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। इसके बेसिस पर क्वेश्चंस, यू कैन गेट द क्वेश्चंस, ठीक। अभी हमने क्या बात की थी, देयर आर 2 मेथड्स फॉर क्रीम सेपरेशन। कौन कौन से मेथड्स हैं बताओ। बताइए। एक तो होमोजेनाइजेशन होता है, उसमें क्रीम हाँ सेपरेट हो जाती है। ठीक और है, डबल और एक होमोजेनाइजेशन भी एक था। और बताओ और दूसरा। विपिन जो आपने बोला, उससे भी क्रीम सेपरेट हो जाती ग्रेविटी, है। ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगेशन। ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगेशन से। ग्रेविटी सेपरेशन, एंड सेकंड वन इज द सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। तो ग्रेविटी सेपरेशन, अगर हम लेमैन में अगर हम देखते हैं कि व्हेन वी पुट द मिल्क पैन इन आवर किचन, इन आवर रेफ्रिजरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जब रखते हैं अनडिस्टर्ब्ड, तो क्या है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। क्रीम। तो हाँ, क्रीम ऊपर आ जाती है, तो दैट इज द ग्रेविटी सेपरेशन। व्हेन मिल्क इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, क्या होगा, फैट जो है वो राइज कर जाता है, फैट राइजेस,
दैट इज नोन एज द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, और second one is centrifugal method, which is done by cream separator। देखा है आप लोगों ने? मैंने देखा है, देखा मैंने है, प्रैक्टिकल किया था। यस मैम। हाँ, है ना? तो milk enters rapidly into the revolving bowl of cream separator। ठीक, तो क्या होगा? It gets the centrifugal force which is 3000 to 6000 times greater than gravitational force। This is an important point कि हम ग्रेविटेशन, एक तो ग्रेविटी मेथड है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल मेथड है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो is 3000 to 6000 times greater than gravitational force। ठीक है, ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करना है। Difference in density affects the heavier portion, that is skim milk, more intensely than the lighter portion, that is cream। The skim milk is forced to the periphery and fat portion moves towards the center। तो फैट जो है, क्रीम जो है वो सेंटर में आ जाती है और जिसको कि सेपरेट कर लिया जाता है। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल एंड इट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर। ठीक है, देयर आर different types of cream separators like warm milk separator, cold milk separator, power driven separator, hand driven, open bowl, or which is also known as the gravity fed। ठीक है, semi enclosed separator, hermetically sealed और air tight। ठीक, तो these are different kinds of centrifugal cream separators। ठीक, now नेक्स्ट पॉइंट, अब आप बताओ इनमें से अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है, कोई पॉइंट है